produce certain rice, I put my kinetic energy into that potential energy. वो gold coin या जो copper coin था, that changed my kinetic energy to potential energy, and I could use that. That gold coin had some value. I could use my hard work that I did in future. So that's how gold coins and silver coins and copper coins started to circulate in our economy, and they represented value, a store of value, and a medium of exchange. But the problem was, as the started to boom, especially in the European countries, it was difficult to take gold bars and gold coins everywhere. You were traveling, traders were traveling from one country to another, so it wasn't very feasible. It was ambiguous. So we started to have an ideation of what we call the concept of banks. बैंक्स ने बोला कि आप you give me your gold coins and I'll give you a slip that represents that gold coin. I gave you 10 gold coins and you gave me a slip that represents 10 gold coin. So people started to exchange with that slips, and they deposited their gold coins in the banks. So that was kind of the starting of how banks, the idea of banks was started. Um, okay. अभी तक कोई doubt? I'll just keep asking after short bits. If there's any, Not please send. Yeah, is Okay. there anyone who has any doubt? You can use the chat box also, and Yeah. you can unmute yourself and ask. So this is how the bank started. अब दो छोटी सी कहानियां हैं जो शायद हमारे आज के टॉपिक में नहीं जाती, बट आई थिंक इट इज़ वेरी टू स्मॉल स्टोरीज. वन इज दैट व्हेन द बैंक स्टार्टेड इन यूरोप, they realized that people are not asking for their gold coins back. So they started to issue IOU slips without a back, gold coins that were backing them. And then one day, people started to liquidate their gold coins, that is, liquidate their IOU slips in exchange for gold coins, and they realized banks do not have that much gold coin, which led to a small crisis in Europe. The second story is that the first currency note was started in China. And when Genghis Khan took over, the state had control of printing the currency note. एंड जिसके पास भी कंट्रोल है पैसों का, जिसके पास भी कंट्रोल है उस लेजर अकाउंट का, दैट पर्सन इज द मोस्ट पावरफुल, एज वी सी इन द अपकमिंग स्लाइड्स. सो Genghis Khan started to print money, print currency notes by the state for his military endeavors, for infrastructure development, which led to hyperinflation in China. They're just two stories that keep in mind as we go on. Um, okay. So 19, the modern financial banking system did not started to take place in the Europe. The modern financial system, as we know it, started as late as 1914. 1914 में बहुत सारे बैंक्स होते थे, एंड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका there were more than 100 currency notes that were being circulated. तो अगर मैं कहीं पे अपना गोल्ड डिपॉजिट करता है, वो मुझे करेंसी नोट्स देते हैं, चेक देते हैं, वो मैं 500 किलोमीटर दूर जो बैंक है वहाँ पे विड्रॉ नहीं कर सकता था. देयर वर 100 प्लस करेंसीज ऑफ एवरी डिफरेंट बैंक, डिफरेंट कमर्शियल बैंक्स. Banks used to issue a हुंडी नोट. हुंडी नोट मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज. So some powerful people came together in 1913 and they said कि ऐसा करते हैं कि we create a system जहाँ पे there will only one currency, one, so that suppose you have deposited in one bank and you go 1,000 kilometers ahead and you'll be able to withdraw it from that bank. So federal system जो है United States का Federal Reserve started to take place, and we had the dollars issued in 1914. 1914 में 1918 में अराउंड $20 से आपको 1 ounce ऑफ गोल्ड मिल जाता था. दिस वॉज द पेग. So the modern financial system started to take place, and then we had the Bretton Woods system. Does anybody know what the Bretton Woods conference was? It's a very significant conference in our recent history, the Bretton Woods conference of 1944. Anybody has any idea?
I guess it was about the gold pegging system. We would peg every currency to gold. Okay. And it's It something also like that government needs to put that much amount of gold in their reserve, like reserve banks or accounts, that much currency notes they will issue. Like जितना gold आप अपने banks में रखेंगे उतना ही आपको Mhm. amount of currency में issue करना. I guess in the Bretton Woods system, all the currencies of the different countries were, you know, calculated in terms of US dollars. Uh, all these answers are correct, and that's really good that you know it because it was very significant. In 1944, after the end of Second World War, the International Monetary Fund was IMF was created, and $1 was equated $35 was equated to 1 ounce of gold. That peg was set, and every currency was backed by dollar. So that's how the dollar has such a big dominance as of now because every currency started to be pegged by dollar and every dollar was pegged to gold. So there was a lot of demand for dollar because everybody was keeping the dollar in the reserve. So that was kind of an overview of how the banks and the currency started evolved with us, right? And money is an abstract concept. ऐसा नहीं है कि नेचर में मनी मिलता है. हम लोगों ने एक आइडिया बनाया मनी को. हमेशा ये याद रखना कि मनी एक आइडिया है, एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने बनाया है. So the economic books that you read, the financial system, you're reading ideas that have been formed by human beings, and in those ideas we have created more theories: capitalism, socialism. So those are just ideas and an abstract concept. So currently circulating supply of rupees 26 trillion. लेकिन estimated circulating supply जो हमारे banks में wallets में that is 200 trillion. इसकी क्या वजह है? व्हाट डज दिस मीन? सो हाँ, तो 1971 में प्रेसिडेंट निक्सन ने क्या करा कि उसने जो गोल्ड पेग है, रुपी वाज पेग टू गोल्ड एंड गोल्ड सॉरी डॉलर एंड डॉलर वाज पेग टू गोल्ड. तो वो जो पेग है डॉलर और गोल्ड का वो उसने हटा दिया. नाउ द मनी, द डॉलर डाटा प्रिंटेड एवरी डे. और you guys would be very shocked to know that इस साल 2020 मार्च से लेकर 2021 मार्च तक जितना भी सर्कुलेटिंग सप्लाई है ना डॉलर का अब तक 40% सिर्फ इस एक साल में प्रिंट हुआ है. 40%, विच इज मैसिव. एंड विल डिस्कस फर्दर why it is grave for us. Anyways, so 1971 में उन्होंने पेग हटा दिया गोल्ड से. Now what was it backed through? It was backed through credit. I mean, sorry, the dollar wasn't backed to anything, but the 200 trillion supply that we have in the banks was backed through credit. इसका क्या मतलब है? So मेरे को चाहिए 50 लाख रुपए का लोन. मैं बैंक के पास जाता हूँ अपने कागजात लेके घर के कि दिस इज द पेपर ऑफ माई हाउस. तो मुझे लोन देते हैं 50 लाख का उसके अगेंस्ट. तो देर आर टू टाइप ऑफ डिपॉजिट. इज वन टर्म डिपॉजिट एंड देर इज टाइम डिपॉजिट. सो ये टाइम डिपॉजिट में आता है विच इज मोस्टली मोर इन वैल्यू. सो बैंक जब तक मैं प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दूंगा मुझे घर के पेपर नहीं देगा. एंड एनीवेज सो उसने जो वो 50 लाख रुपीस का लोन मुझे दिया, वो आरबीआई ने वो पैसे इशू नहीं करे थे जो करेंसी नोट में 26 ट्रिलियन डॉलर्स ही आरबीआई ने क्या कहते हैं इशू करके सर्कुलेटिंग सप्लाई इकोनॉमी में डाली. जो 50 लाख के अगेंस्ट जो घर के अगेंस्ट 50 लाख का लोन आया है वो क्रेडिट करा गया बैंक ने. वो बैंक ने पैसे क्रिएट करे गए. ठीक है. तो ये जो सिस्टम है ना, ये जो प्रोटोकॉल है, ये बैंक्स को बहुत ज़्यादा पावर देता है. एंड ये हम देख सकते हैं कि सेंट्रल बैंक से भी ज़्यादा पावर देता है ये कमर्शियल बैंक्स को. 26 ट्रिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई है. 200 ट्रिलियन इज द एस्टिमेटेड सर्कुलेटिंग सप्लाई विच इज क्रिएटेड बाय बैंक्स. और बैंक की जरूरत थी जब आरबीआई बना था 1934 में. तो उन्होंने कमर्शियल बैंक्स और स्टेट बैंक सेटअप करे because they wanted the financial services to reach the citizens.
but I don't think that time they would have estimated how disastrous or how powerful bank will become. मैं वापस अपनी वो बात रिपीट कर रहा हूँ कि जिसके पास खाते का पावर है, the person who can modify the ledger, the खाता, is the person who controls the economy. And रॉथस्चाइल्ड का एक बहुत फेमस कोट है, एंड आई डोंट रिमेंबर इट एग्जैक्ट वर्डिंग्स टू वर्डिंग्स, बट वो ऐसा है कि आई डोंट केयर विच डमी रूल्स द who is the king of England, as long as the person who has the power to print money, he controls England. And he has said similar in many occasions. So money और currency में difference क्या है? Money is basically subjective understanding of value between two people in the exchange of good. Subjective understanding of value between two people between exchange of good, या फिर हम कहें abstract idea of value of good. Currency is a form of money. मनी क्या था कि जो मैंने वो IOU, जब बार्टर सिस्टम के बाद IOU आया था, तो हमने IOU नोट किया और IOU को डोनेट कर दिया फिर हमने कॉइन से. कॉइन क्या करता था? जो गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, कॉपर कॉइन है, वो एक यूनिट प्रोवाइड करता था ताकि मैं अपने लेजर में लिख सकूं. वी नीड अ यूनिट, ही ओज अस एक्स को यूनिट देने के लिए हमने कॉइन बनाया. सो मनी वाज अ यूनिट ऑफ अकाउंट, इट वाज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. IOU भी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज था, एक गारंटी, एक कॉन्ट्रैक्ट, एक ट्रस्ट कि तुम मुझे दोगे ये चीज़ बाद में. इट वाज दैट स्लिप इज ऑल्सो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अ यूनिट ऑफ अकाउंट, एंड इट वाज अ स्टोर ऑफ वैल्यू. यानी कि मैंने जो एक महीना चावल उगाए है फील्ड में काम करके, अपनी वो काइनेटिक एनर्जी, वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करा मैंने उस कॉइन के थ्रू, और वो कॉइन मेरा उस एक महीने की मेहनत को स्टोर करता है. दैट इज मनी इज स्टोर ऑफ वैल्यू. एंड करेंसी हैड ऑल दीज प्रिंसिपल्स ऑफ मनी. यानी करेंसी वॉज अ टाइप ऑफ मनी. गोल्ड इज ऑल्सो मनी, IOU वॉज ऑल्सो मनी. सो करेंसी वॉज अ टाइप ऑफ मनी. लेकिन हम देखते हैं कि 1971 में इसका कोई महत्व नहीं रुक रहा, क्योंकि it is not a good store of value now because it is not backed by gold. So when it is not backed by anything, कि वो पेपर की तरह प्रिंट होता रहता है, तो it is not a store of value. So basically दो इंस्ट्रूमेंट्स है हमारे मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम के, करेंसी एंड बैंकिंग. हम उन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज करेंसी. कोई मुझे बता सकता है कि RBI गवर्नर कौन है इस टाइम? शक्तिकांत दास. यस, राइट. सो मैंने ये 200 का नोट निकाला है, इफ यू कैन सी माय वेब कैमरा, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है, आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ 200 रुपीज, एंड इट इज साइंड बाय उर्जित पटेल, जो गवर्नर थे उस टाइम. मतलब पहली बात तो जिस बंदे ने प्रॉमिस करा था मुझे वो भी नहीं है, ठीक है, बट एनीवेज ही इज नॉट इन पावर नाउ. बट लेट्स से कि एक बंदा था जिसने 200 रुपये कमाए. ही वर्क फॉर 1 ईयर, हाइपोथेटिकली सोचना, ठीक है. ही वर्क फॉर 1 ईयर एंड ही अर्न जस्ट 200 रुपीज. उसको 200 ग्राम से अपनी बेटी की शादी के लिए उसने सोचा कि मैं 1 ग्राम सोना खरीदूंगा. So but unfortunately he goes into coma. After 10 years he wakes up from coma, and he takes his 200 rupees, उसकी 1 साल की मेहनत थी, and he goes to buy gold, but he only gets 0.1 gram of gold. He then goes to buy rice. For 200 rupees he could buy 100 kgs of rice. Now he can only buy 1 kg of rice. He goes to buy a chocolate. He can't buy the equal amount of, so he goes to the governor, assuming कोई ऐसा शख्स नहीं आया सरकार में जिसने 200 का नोट इनवैलिड कर दिया हो ओवरनाइट. अज्यूमिंग दैट ही गोज टू द गवर्नर, राइट, एंड गवर्नर भी चेंज हो चुके हैं, बट ही सेज कि यू हैव प्रॉमिस्ड टू पे द बेयरर द सम ऑफ 200 रुपीज. सो प्रॉमिस पूरा करो, गिव मी द सम ऑफ 200 रुपीज. गवर्नर सेज कि आपके हाथ में है सर. ही सेज बट ये तो मेरे को मिल नहीं रहा कुछ. तो ये क्या हुआ? तो क्या हुआ कि एक तो रुपये किसी से बैक नहीं था कि उसे 200 का गोल्ड मिल जाता.
हुआ क्या, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, 200 रुपये का नोट एक कॉन्ट्रैक्ट है, और इसका जो ये प्रॉमिस है ना, ये फॉल्टी है। अब आप बोलोगे सर आपने इन्फ्लेशन बता दिया, आई हैव रेड इन माई इकोनॉमिक बुक। ओके, सो होता क्या है कि जब मैं 50 रुपए का चावल खरीदता हूँ ना किसी कहीं से, वो 50 रुपए एक्सचेंज होते हैं, एंड दैट गोज इन टू GDP। द 50 रुपीज दैट इज एक्सचेंज, द एक्सचेंज ऑफ वैल्यू इज कैलकुलेटेड क्यूमुलेटिवली एज GDP। वो 50 रुपए GDP में चले जाते हैं, और यही GDP का प्रमाण पत्र दिखाते हैं हमारी सरकार कि देखो 7% इंक्रीज इन GDP एंड 5% इन्फ्लेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, 7 - 5 करते हैं, कितने 2% का तो प्रॉफिट ही हुआ। तो हम लोग इन्फ्लेशन को ना एज अ नेसेसरी इविल ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि इट इट एन एवर इन्फ्लेटिंग इकोनॉमी ओनली मेक्स पीपल पुअरर। अब आप ओके, सो 1940s में 1 रुपए से आपको $1.2 मिल सकता था। अभी रुपी का प्राइस डॉलर के अगेंस्ट अराउंड 75 टाइम्स गिर चुका है। लेकिन हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो है वो अमेरिका की 1/10 भी नहीं है, या शायद 1/10 ही होगी। सो इससे देखा कि हमने इन्फ्लेशन, जो एवर इन्फ्लेटिंग इकोनॉमी है, डजंट नेसेसरली मीन कि वो अमीर होती रहे। जो आपके दादाजी थे, वो 10 घंटे काम करते थे अगर वीक में, तो उन्हें 500 रुपये मिलते थे, जिनसे वो 7 बच्चों का घर चलाते थे। आपके जो पापा थे, वो 10 नहीं, वो 15 घंटे वीक में काम करते थे, जिससे उन्हें 10,000 रुपये मिलते थे, और उससे वो 2 बच्चों का घर चलाते थे। मैं अगर शायद 20 घंटे काम करूंगा तो मुझे 50,000 रुपये मिलेंगे, जिससे शायद मैं एक बच्चे का भी घर ना चला सकूं, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज, बिकॉज GDP डजंट ब्रिंग इन अकाउंट ऑल ऑफ द थिंग्स। एंड यू कैन रीड मोर अबाउट GDP। खान अकेडमी मैंने बहुत अच्छा आर्टिकल देखा। यू कैन नॉट bring the contribution by the housewife into GDP, by the NGO which teaches the poor children to GDP, the evolution of technology into the GDP. GDP does not measure the value society uh, puts on the certain type of outputs, right? So inflation is a not a necessarily evil. It is not a feature of the system. ये बस हमारी बुक्स में डाला गया आफ्टर 1971 ओनली, रिसेंटली, जब डॉलर से पेग हट गया। सेकेंडली, वी हैव इम्बैलेंस ऑफ पावर। हमारे जो रुपी है, राइट, इसका रिप्रेजेंटेटिव कौन है? हमारी कंट्रीज। ग्लोबल लेवल पे इस रुपीस को हमारी कंट्रीज रिप्रेजेंट करती हैं। तो हम देखते हैं कि डॉलर की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है रुपीस से। इससे क्या होता है? अब आप पहले पूछोगे सर आपने वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर ली रुपी और डॉलर की। मैं बोलूँगा कि सपोज एक बर्गर है, वो इंडिया में 180 का मिल रहा है, एंड या बर्गर या कॉमोडिटी फॉर द सेक बर्गर समझ लो, 180 का मिल रहा है, एंड यूनाइटेड स्टेट्स में $10 का मिलता है। वो 180 और 10 के बीच का फ़र्क है, राइट, यूनिट में। तो उससे हम परचेजिंग पावर पैरिटी कैलकुलेट करते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिस्ट, एंड आई this isn't a very accurate figure, obviously money is an abstract idea, तो theories भी एक abstract है, but according to some economists, $1 should equal to 16 rupees according to the purchasing power parity। but ऐसा नहीं है। इसकी वजह क्या है? जब 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था, एवरीबडी स्टार्टेड टू यूज डॉलर, और फिर डॉलर ने डोमिनेंस बना ली ऑयल ट्रांजैक्शन में, जिसे कहते हैं पेट्रो डॉलर, एंड इट इज अ कॉन्सेप्ट दैट एवरीबडी शुड रीड अबाउट, पेट्रो डॉलर। तो 80 to 85% ऑफ ट्रांजैक्शंस हैपनिंग ग्लोबली इज थ्रू डॉलर, जिससे डॉलर की डिमांड बढ़ती है। हाउ डज यूएसए, even after the peg was removed in 1977 1971, people were still dependent on dollar। इससे क्या होता है कि डॉलर की डिमांड बढ़ती है, बट हाउ डज यूएसए अचीव दिस? बिकॉज ऑफ मिलिट्री माइट। यूएसए गिव्स इट्स मिलिट्री टू स्मॉल कंट्रीज एंड सेज इन एक्सचेंज फॉर माय प्रोटेक्शन यू यूज डॉलर, or you use dollar in your reserve, or you use dollar for exchange of oil। it's using political diplomacy। so there is an imbalance of power in global scale। एक केन्या, नाइजीरिया, अफगानिस्तान जैसी कंट्री
का जो करेंसी है वो कभी डोमिनेट नहीं कर पाएगा या कभी ग्लोबल लेवल में ऊपर नहीं आ पाएगा, बिकॉज दे डू नॉट हैव दैट मिलिट्री माइट, दैट पॉलिटिकल डिप्लोमेसी, दीज आर स्मॉल कंट्रीज। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि अगर 10 घंटे मैं हिंदुस्तान में काम करता हूँ, आई एम रिवॉर्डेड लेस फॉर माई वर्क on a global scale than a person who's working in America. For the same 10 hours, he's rewarded more. And this imbalance of power isn't very justified. The third is you are not the direct stakeholder. इसका क्या मतलब? uh, अच्छा, फॉर ये मैं एक बात नोट करना चाहूँगा कि हमेशा जीडीपी से इन्फ्लेशन जस्टिफाई हुआ है, लेकिन इस बार जीडीपी -5% गई थी। So how do you justify inflation when the GDP is also negative? Anyways, you are not a direct stakeholder. अगर मैं किसी देश में रहता हूँ जिसने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा रखे हैं और मुझे वहाँ पे देश में किसी से स्वेटर खरीदना है, वहाँ पे देयर इज एन ओल्ड लेडी दैट वूज द स्वेटर, सो आई वांट टू बाय इट फ्रॉम हर। But if my country has put on sanctions and does not allow me to pay someone from to that country, I cannot use the money from my own hard work to buy a commodity. यहाँ पे censorship आ जाती है। Money becomes undemocratic. Money का जो use था वो हमेशा ये था, the people are the direct stakeholders. Secondly, you do not control the inflation of your money. You do not directly elect the representatives who are controlling the inflation or deciding the inflation. अभी यूनाइटेड स्टेट्स में जब 40% ऑफ द एंटायर सर्कुलेटिंग सप्लाई गॉट प्रिंटेड, द मार्केट्स बूम्ड, राइट? लेकिन जिन लोगों का पैसा डॉलर्स में ही था उनका तो वैल्यू नीचे आ गया। सो ओनली फ्यू वर बेनिफिटेड फ्रॉम दैट ऑन अ लार्जर सेंस। देयर इज अ बिलियनियर इन्वेस्टर पोम्पलिनो, जिसका ये अभी उसने उसका 90% वर्थ इज इन बिटकॉइन, and he went on to CNBC and said that this is the most disastrous thing the United States is doing, that is bringing the value of dollar absolutely down. So जिनके पास asset है, शेयर मार्केट ऊपर गई थी। तो ये कौन डिसाइड करता है कि इन्फ्लेशन बढ़ानी है ताकि एसेट का प्राइस ऊपर जाए? और जो आम जनता है उनका जो करेंसी है, जो एक लेबरर है वो 10 रुपए कमा रहा है, उस 10 रुपए में उसका पूरी दिहाड़ी है, उसकी वैल्यू भी नीचे आ जाए, राइट? वी डू नॉट डिसाइड दैट, RBI does, and we do not elect the representatives of the RBI. Any questions up till now? Hello. I guess so. There is no question. We can go ahead. Okay. So second हम banks में आते हैं, and we just over with this history and problems. So banks is the second leg of the modern financial system. और बैंक्स की क्या वैल्यू है? मतलब ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से, पता है जब यूरोप में बैंक्स का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि some individuals came together and said you deposit your gold coins to me and I'll take care of them. It took hundreds of years for banks to develop that trust, and that's the only thing banks work on, trust. And it is not a very good measure of your security, especially in modern times when we have better technology available. So banks have too much power. Firstly, too much power का क्या मतलब है कि as I said पिछली slide में, estimated circulating supply in banks is 200 trillion as compared to RBI issued 26 trillion. So banks बहुत ज़्यादा currency credit create कर सकते हैं, एंड हमने इसका एक्सप्लॉइट बहुत बार देखा है। जब भी आप किसी को बहुत ज़्यादा पावर देते हो ना, तो they are bound to misuse it. Second is remittance fees. If I am working in Canada and I need to send money to my family in India, why do I need to pay $100 just to send my own money to my own family? I mean, it doesn't really make sense, because because first of all, the technology banks use is traditional. एक फन फैक्ट, फिर से थोड़ा वेबिनार से हट रहा हूँ मैं, बट जब व्हेन द क्रिप्टो करेंसीज एंड द ब्लॉकचेन स्टार्टेड टू रियली इवॉल्व एंड स्टार्टेड टू कम इन डिस्कशन, we got to know that the ledger technology, the technology behind the bank's remittance is by a company called Swift, and it is a private company.
Globally, it provides technology to all the banks. And look at the centralization of power. One company has a technology, a medieval technology, which it can really exploit. Anyways, uh, then and when I send money to my family in India from Canada, there are actually physical bank offices that come into work when they are processing my payment. Third is better tech available. Obviously, blockchain is a better tech, and like everything evolves. Internet आया in 1999, and it completely changed the world we perceive the completely changed the way we perceive the world. I mean, look at us talking through this, from our homes through this, Zoom application. We have evolved a lot, but we still use that old technology, the old concept of GDP, the old concept, the 100-year-old concept of our financial system, which is flawed. और कुछ क्या कहते हैं, येस बैंक का अगर आप बोल सोचो, येस बैंक अभी फेल हो गया. एंड व्हाई डिड इट फेल? बिकॉज इट गेव बैड लोन्स. एंड इफ यू रीड अबाउट द बैड लोन्स ग्लोबली, हर बार मैं इंडिया का एग्जांपल ले रहा हूँ जस्ट सो दैट वी कैन कनेक्ट, बट द प्रॉब्लम इज ग्लोबली, राइट? सो how much do you think, if a bank fails in India, how much money are you guaranteed by the government? Any answer? आपके 1 करोड़ रुपए पड़े बैंक में, how much can you get? Yeah, earlier it was 1 lakh, now 5 lakhs. Okay, that is the correct answer. The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation, जो insurance provide करते to our banks, will only pay you, according to me it was 1 lakh, but if you're saying it's updated to 5 lakhs, that's because I read a Hindu article recently, it was 1 lakh. But if it's even 5 lakh, that's it. If you have 1 crore rupees in bank, the bank fails because of its own fault, because it did not manage your own money, right? Because it played a malicious role and gave loans to their friends, created credit, right? The loan that they gave were also credit that they created. So, banks can create money. So that is how disastrous it is. And abhi HSBC का $800 million का fine हुआ because they laundered money for a drug kingpin. Um, Recently, 2 years back or 1 year back, Singapore got into a scam with 1 MDB. It was Singapore, or sorry, it was Malaysia. 1 MDB scam tha with Goldman Sachs. Goldman Sachs laundered $10 billion of taxpayers' money of a country just for a few powerful individuals. That's how much power banks have. And that's what they did. They robbed an entire country, one private bank, Goldman Sachs, and is still operating. Barclays, Citigroup, JP Morgan, Royal Bank of Scotland, MUFG, they were recently fined because they manipulated the forex exchange rate. And this is not the first time top 20 global banks have been fined to manipulate the global forex exchange rate. और ये हो रहा है और ये होता रहेगा. क्यों होता रहेगा? Because the only and only collateral that you have with your bank, the only reason banks work है क्योंकि हम उन्हें trust करते हैं. अरे कितना medieval, कितना old concept, and it is not feasible, it is not a good idea कि trust के basis में हमने इतने बड़े giants create कर रखे जो evidently again and again misuse the power, and the system gets rigged. If they can manipulate forex exchange rate again and again, and you Google this, the top 20 banks that are globally, हर एक बैंक ने manipulate कर रखा है, and they are fined, and God knows how many scams are not caught. नेक्स्ट वी गेट इनटू दिस डायग्राम. सो ये यही बता रहे कि जैसा मैंने बार बार बोला कि द पर्सन हु कंट्रोल्स द लेजर, जो खाता कंट्रोल करता है, उसी के पास सारी पावर है. तो हम देखते हैं जब बार्टर सिस्टम था, जब आईओयू आया, आईओयू लोग लिखने लग गए अपना हिसाब, तो एवरीबडी कंट्रोल देयर ओन लेजर. सो इट वाज लो इन इक्वालिटी. Then came kingdoms, kings, Genghis Khan, high inequality because the country started to control the ledger. उनके मंत्री जो है लेजर कंट्रोल करते थे, and it was a one way entry system. Only the mantris or the countrymen, the kings could change the ledger. It was a one way entry system. Then came the global markets, which was two way entry system. Yani the banks, and banks could modify any ledger. You could view and modify your own ledger. That also you were dependent on the cooperation of the bank through trust, right? And it was monstrously unequal because now central banks were not controlling it,
as I told you, commercial banks have far more power than central banks because they can create money out of thin air through credit. So it was monstrously unequal. Then came Bitcoin Ledger Network, and finally हम Bitcoin के बारे में बात कर रहे हैं. So Bitcoin फिर से वही जो हक है for every person to maintain their own ledger for a distributed peer-to-peer network. यानी हमें किसी बैंक की जरूरत नहीं है to send you the money, and it is publicly open. All the transactions are publicly open, so that puts the right back to the hands of the actual direct stakeholders that are us. और ये एक मीम है, मतलब पूरा प्रेजेंटेशन बस मीम्स ही है ज़्यादातर. तो यू शुड बाय डॉज बिकॉज इट इजंट बैक्ड बाय एनीथिंग एंड दे कैन जस्ट क्रिएट मोर एज नीडेड. डॉज, तो किस लोगों को पता है डॉज एक क्रिप्टो, एंड आई डू नॉट सपोर्ट बाइंग इट, राइट, बट एक क्रिप्टो करेंसी. बट डॉज इज अ वेरी गुड साइकोलॉजिकल स्टडी कि हाउ डज समथिंग गेट वैल्यू. समथिंग गेट्स वैल्यू व्हेन वी वैल्यू इट, दैट्स इट. व्हेन ह्यूमंस डिसाइड कि इसका मैं बहुत पैसा दूंगा और दूसरा कहता है मैं और दूंगा, ऐसे करते करते वैल्यू इंक्रीजेस. देयर इज नो, बिकॉज डॉज डजंट हैव एनी सॉलिड लॉजिक टू इट. इट हैज इनफाइनाइट सप्लाई, बट स्टिल पीपल बॉट इट. But it is similar to US dollar. Dodge is infinite supply. United States dollar is infinite supply. 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, जैसे हम सब लोगों को पता है. और वो क्यों आया? क्योंकि बैंक्स ने बैड लोन्स दिए जानते हुए that they are bad loans against housing, for housing loans, right? And जब बैंक लोन देता है, जब बैंक क्रेडिट क्रिएट करते हैं अगेंस्ट सम एसेट, मैंने अपना एक घर गिरवी रखा टू बाय, टू हैव सम कैश, राइट, how much does that house value, is it worth to give me 50 lakh rupees? This is decided by banks as a private, and they can manipulate it. And in 2008, all the investments that the banks did with that credit into the mortgage, housing mortgage industry जो crash हो गया था, वो जो उसको ना ग्रेड देना पड़ता है, AAA ग्रेड, मतलब अच्छा इन्वेस्टमेंट. एंड गवर्नमेंट यही रेगुलेट करती, कहती है कि आप 10% से ज़्यादा C ग्रेड इन्वेस्टमेंट में नहीं डाल सकते. लेकिन वो जो ग्रेड है, जो उस बेकार इन्वेस्टमेंट्स को बैंक्स की, लोगों के पेंशन फंड्स की दिया था, A ग्रेड दिया था, वो प्राइवेट एजेंसी ने दिया था, और अभी तक प्राइवेट एजेंसीज ही देती है. तो हम देखते हैं कि हमारा जो पूरा समाज है, इट हैज इवॉल्व्ड a lot into the centralized domains which wasn't supposed to be, and this is because we have a fundamentally flawed financial system. So 2008 mein there was a financial crisis, and you should read about it. One is petrodollar that I told you to read about, and one is the 2008 financial crisis. So somebody named Satoshi Nakamoto, और हमें नहीं पता ये कौन है, somebody named Satoshi Nakamoto published this white paper. This is a 9-page white paper called Bitcoin Peer-to-Peer Electronic Cash System. This wasn't the first attempt to create a decentralized currency, but this was the most successful one. Directly यहाँ पे कुछ highlight कर रखा है. This is the first page of the white paper that was published. This is the holy grail. अगर पढ़ना है तो ये 9 पेज पढ़ो and you know Bitcoin. Directly from one party to another without going through a financial institution. And आगे का भी हम जो highlight है we'll discuss it further. ये मैंने एक थोड़ा as a token of nostalgia मैंने ये image डाली है. This is the first post by Satoshi Nakamoto in a Bitcoin forum. और कोई company नहीं थी जैसे back करी. They were just some developers who were in their in their house. They got together anonymously and they started developing it. And this is the first post in the forum. You can still go to bitcointalk.org and you see discussions from 2009, 10, 11, where people are discussing on how to develop Bitcoin, how to develop the protocols. So what Bitcoin essentially solved. अच्छा, अब यहाँ से हम tech में आते हैं. Is there any question up till now? अगर है तो बोल दो, मतलब the only purpose is for us to ask questions. सतोशी नाकामोटो के बारे में कभी कुछ पता नहीं चला सर? सतोशी नाकामोटो के बारे में कभी कुछ पता नहीं चला? नहीं चला. IP एड्रेसेस ट्रेस करे गए, उनका जो बिटकॉइन ट्रांजैक्शन है उसको किसी तरह रिवर्स इंजीनियर करा गया, बट
बट सतोशी नाकामोटो कौन है पता नहीं चला, and he suddenly became inactive one day. So since then, and it is kind of nice if you see, but we'll never know who Satoshi Nakamoto is until he comes up on his own. But I believe I don't know who Satoshi Nakamoto is, but he kind of left this beautiful creation for the community to develop. तो शायद आज से 100 साल बाद, when our grandkids के kids, they'll go to Mars and they'll have colony on Mars, and you'll be sent, our grandkids will be sending them money through Bitcoin, right? And so beautiful technology will have a very anonymous start. So basically एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम होती है, बिजेंटीन जर्नल्स प्रॉब्लम, और इसको हम इस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को आज हम इस इमेज के थ्रू देखते हैं. कोई कुछ बोल रहा है? सो अज्यूम करो कि एक कासल है और कासल के आसपास बहुत सारे जर्नल्स हैं और वो थोड़ा डिस्टेंस में है, 10-20 किलोमीटर दूर है, एंड वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू मैसेंजर्स. तो या तो उन्हें साथ में अटैक करना है या फिर साथ में विड्रॉ करना है. अगर ऐसा हो गया कि जैसे 6 जर्नल्स है, 3 ने अटैक करा, 3 ने विड्रॉ कर लिया, तो वो फेल हो जाएंगे, उनका अटैक फेल हो जाएगा. तो फिर या तो सब अटैक करे या सब ना करे अटैक. इसके लिए उन्हें कम्युनिकेट करना है. तो हर एक जर्नल अपना मैसेंजर अपने लेफ्ट और राइट वाले को भेज सकता है. और अगर मैसेंजर सपोज बीच में दुश्मन ने मैसेंजर को मार दिया, मैसेंजर झूठा निकला, या मैसेंजर सही से पहुंचा दिया लेकिन जो जर्नल है वो ट्रेटर निकला, सब लोग अटैक का कह रहे हैं, उसने आगे मैसेज फॉरवर्ड कर दिया कि विड्रॉ करना है, तो अटैक फेल हो जाएगा. तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, राइट, कि मैसेंजर सही होना चाहिए, मैसेज सही से पहुंचना चाहिए, कोई जो जर्नल है वो ट्रेटर नहीं होना चाहिए. तो हम देख सकते हैं कि एक ट्रस्ट की ज़रूरत है इसमें. जैसे हम बैंक्स को ट्रस्ट करते हैं वैसे इस चीज़ में ट्रस्ट की ज़रूरत है. तो हम ट्रस्ट एक सिस्टम में ये ट्रस्ट कैसे ला सकते हैं क्रिप्टोग्राफिकली. तो 1 2 3 4 ये 4 इमेजेस है. मैं इस प्रॉब्लम को थोड़ा ब्लॉकचेन से लिंक करता हूँ, अगर ना समझ आए तो प्लीज़ मुझे बताना, ठीक है? सो ये जो फर्स्ट इमेज है इसमें वही जर्नल्स है कासल के आसपास. उसी प्रॉब्लम को तुम इस जर्नल को एक ब्लॉकचेन के आसपास समझ लो, ठीक है? अब जर्नल को रिप्लेस कर दो नोड्स से. नोड्स क्या होते हैं सर? नोड्स वो होते हैं जो खाते का हिसाब रख. यू कैन रन योर ओन नोड. when you run a Bitcoin node, you have access to all the ledger खाता of Bitcoin. या आप blocks देख रहे हो, you see these blocks. Every I don't know, I don't remember how many transactions are in one block. Assuming 100, so every 100 transaction gets into this one block. जो आप पासबुक का एक, if I have a passbook here, आई डोंट हैव अ पासबुक है वरना मैं दिखाता. तो पासबुक का एक पेज समझ लो, एक ब्लॉक को, जिसमें 100 ट्रांजैक्शंस आ रही है सबकी, आपकी नहीं सबकी. अगले उसमें फिर 100 ट्रांजैक्शन आ रही है. तो वो पूरा पासबुक रन करना एक तरीके से एक नोड रन करने की तरह हो गया, ठीक है? तो इन जर्नल्स को समझ लो वो नोड रन कर रहे हैं और उनको जो हर एक ब्लॉक चाहिए, हर एक ट्रांजैक्शन चाहिए, वो सही होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए मेरी पासबुक में कुछ ट्रांजैक्शन है, आपकी पासबुक में कुछ और ट्रांजैक्शन है. which requires trust that every transaction that is coming to my passbook should be verified. ऐसा नहीं होना चाहिए somebody sent a wrong message, जैसे कि जर्नल का प्रॉब्लम था कि उसने गलत मैसेज भेज दिया कि विड्रॉ करना है बट अटैक करना था, ठीक है? तो दिस इज बिजनेट जर्नल प्रॉब्लम जो ब्लॉकचेन में होती है, जो किसी भी ट्रस्टलेस सिस्टम बनाने के लिए होती है. और इस ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सतोशी नाकामोटो ने सॉल्व करा बिटकॉइन के थ्रू, जहां उन्होंने बोला कि हमें कंसेंसस एल्गोरिथम बना, मतलब कैसे सॉल्व करा, एक एल्गोरिथम के थ्रू जिसे कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क, जैसे हम अभी आगे देखेंगे. और जो सिस्टम में ये जो दिक्कतें थी बिजनेट जर्नल प्रॉब्लम की नहीं होती, उसे हम कहते हैं बिजनेट फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम. ये नाम याद रखना इतना ज़रूरी नहीं है, बट याद रखो कि प्रूफ ऑफ वर्क एक एल्गोरिथम है
जिससे हम ये ट्रस्ट की दिक्कत सॉल्व करते हैं. सो बेसिकली हाउ डज बिटकॉइन वर्क? मैं सेंडर हूँ, आप रिसीवर हो, बीच में बिटकॉइन माइनर है. अभी बताता हूँ मैं क्या करता है ये. तो ब्लॉकचेन से हम दोनों के बीच ट्रांजैक्शन हो जाती है और बिटकॉइन माइनर क्या करता है, उस ट्रांजैक्शन को उस लेजर में डालता है. राइट, नोड मतलब पासबुक जहाँ पे वो ट्रांजैक्शन आ रही है, बट वो भेजने वाला माइनर होता है. और अब आप बोलोगे माइनर को ट्रस्ट कैसे करते हैं? प्रूफ ऑफ वर्क से ट्रस्ट करते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे. ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या होता है, हम बैंक को भेजते हैं पैसे, बैंक आपस में एक्सचेंज करते हैं. इसमें क्या करते हैं, हम ट्रस्ट करते हैं बैंक को कि वो एक्सचेंज करेगा हमारे लिए. जैसा मैंने बोला, ट्रस्ट इज नॉट अ गुड सिस्टम. साथ ही साथ बैंक्स को बहुत ज़्यादा पावर दे देता है ये सिस्टम. ठीक है, देयर इज अ चैट. ओके, सो जैसे लेजर है, हर एक यहाँ नीचे लिखा हुआ Hello. माइनस So करते sorry, क्या? sorry to interrupt. There's a question in chat box uh, from Akshay Ghatki that those block contains transaction of cryptocurrency or any other transaction. दे कंटेन ट्रांजैक्शन ऑफ क्रिप्टो करेंसीज. हम ये जो सेंडर ने रिसीवर को भेजा, ठीक है, ये यहाँ पे देख लो, एलिस, ये लेजर है ना, एलिस स्पेस बॉब 20. ये लेजर एक ब्लॉक ही है, इसको ब्लॉक की तरह अज्यूम करो जिसमें 3 ट्रांजैक्शन है. तो एलिस स्पेस बॉब्स 20 लेजर डॉलर्स को आप बिटकॉइन से 20 बिटकॉइन पे करें, तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये एक ब्लॉक में आ जाती है. ऐसी 100 ट्रांजैक्शन जब ब्लॉक में आ जाती है तो उसे एक पूरा ब्लॉक कहते हैं जो माइन हो जाता है. तो एक ब्लॉक में 100 ट्रांजैक्शन होती है, क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन. एलिस ने बॉब को दिया, किसी और 2 लोगों ने अमेरिका से अफ्रीका में ट्रांसफर करा, वो सब एक ही लेजर में आती है, एक ही ब्लॉक में आती है. इफ दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. हम भी और पढ़ेंगे इस बारे में. इज देयर अभी नहीं आया तो आई कैन एक्सप्लेन अगेन. हेलो. Sir, जैसे ही आएगा chat box में I'll let you know किसी हाँ और ठीक का है ठीक है, question. हाँ कुछ भी आए चैट में प्लीज डाल दो और आई पॉज, क्योंकि टाइम मत वेस्ट किसी का नहीं होना चाहिए, हम सब समझ के जाए यहाँ से. सो यहाँ लिखा है माइनर क्या करता है. माइनर, मैंने यहाँ पे बोला कि माइनर फैसिलिटेट करता है ट्रांजैक्शन को. तो बेसिकली ये जो ब्लॉक है ना, उसको वैलिडेट करता है. जो हर किसी नोड में, हर एक नोड में वो ब्लॉक आ रहा है. यहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, और ये इमेज 3 को देखना, बहुत सारे ब्लॉक्स हैं एंड नोड्स है. तो हर एक जो ब्लॉक नया ऐड होता रहता है ना, वो हर एक नोड के पास चला जाता है. मतलब कि पासबुक अपडेट होती रहती है. पासबुक का एक पेज एक ब्लॉक की तरह समझ लो. वो जो एक पेज है वो माइनर भेजता है, बट हम माइनर को ट्रस्ट कैसे करें? ठीक है, सो बेसिकली व्हाट माइनर डू इज, यहाँ नीचे लिखा हुआ है, दे ट्राई टू फाइंड अ रैंडम नॉन्स, they try to find a random number that goes into a block and makes the block have a SHA-256 hash that in binary starts with a certain amount of zeros. The more zeros, the more rare the hash is. The hash outcome is not predictable and so you have to try a lot of times. अगर किसी को नहीं पता कि SHA-256 हैश क्या होता है या हैश क्या होता है, प्लीज चैट बॉक्स में लिख दो तो आई एक्सप्लेन दैट अलग से, वरना मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अज्यूमिंग तुम लोगों को SHA-256 पता है. Yeah, please explain it. I'm not aware ओके, about this. ठीक है. तो अगर सच एक फंक्शन है, ठीक है, SHA-256 एक फंक्शन है जो 256 बिट का आउटपुट देता है. सबसे पहले इतना समझना, एक फंक्शन है जिसके अंदर हमने एक इनपुट डाला, कुछ भी इनपुट डाला, फोटो डाली, वीडियो डाली, मेरा नाम डाला, मेरा फ़ोन नंबर डाला, किसी भी लेंथ का, किसी भी टाइप का हमने इनपुट डाला, तो वो एक आउटपुट देगा 256 बिट का, ना कम ना ज़्यादा. 256 मतलब 256 0 और 1. तो वो SHA-256 फंक्शन कुछ भी डालो, 256 0 एंड 1 का आउटपुट देगा, जो उसी के लिए स्पेसिफिक होगा. अगर मैंने सचिन लिखा तो एक स्पेसिफिक 256 बिट का आउटपुट आएगा. अगर मैं सचिन की जगह सचिन 1 लिख दिया तो आउटपुट जो है वो पूरा डिफरेंट होगा. मतलब कि हर एक यूनिक इनपुट
अगर मैंने एक फोटो डाली अपनी खींच के तो एक 256 बिट का आउटपुट आएगा। मैंने उस 1080p फुल एचडी फोटो का एक छोटा सा पिक्सल चेंज कर दिया ना, तो आउटपुट पूरा अलग आएगा। तो इससे हमें एक बहुत ही सिक्योर हैशिंग फंक्शन मिलता है। आज पूरा जो इंटरनेट है हमारा वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो माइनर को हम ट्रस्ट कैसे करें और प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है, राइट? सो ये जो लेजर है, एंड इसमें एंड में हम एक माइनर जो एक नंबर डालता है, जैसे 1073765433। पहले थोड़ा सा मैं वापस जाता हूँ। बिटकॉइन का जो हर एक ब्लॉक है वो 10 मिनट में माइन होता है, मतलब कि हर एक ब्लॉक 10 मिनट बाद आता है। तो ब्लॉक अगर माइनर बढ़ते रहते हैं तो फिर माइनर को क्या मिलता है, एक ब्लॉक माइन करने के लिए रिवॉर्ड मिलता है, जो अभी है 6.25 बिटकॉइन। अगर माइनर बढ़ जाएंगे तो 10 की जगह 1,000 माइनर हो गए, तो वो 10 मिनट से जल्दी ब्लॉक ढूंढ लेंगे, है ना? तो फिर इससे क्या होता है कि हमें डिफ़िकल्टी जो होती है, कंप्यूटेशनल पावर या डिफ़िकल्टी जो होती है एक माइनर के लिए, वो हम बढ़ा देते हैं कि इतनी जल्दी ना ढूंढ पाए वो ब्लॉक, 10 मिनट लगाए वो, ठीक है? तो क्या होता है कि बेसिकली माइनर को ना एक ऐसा हैश ढूंढना होता है जिससे जो आउटपुट आ रहा है, जैसे मैंने बोला SHA-256 का 256 बिट का आउटपुट होता है, उस आउटपुट के स्टार्टिंग में एक्स नंबर ऑफ जीरोज हो। जितने ज़्यादा जीरोज उतनी ज़्यादा डिफिकल्टी। बहुत ज़्यादा माइनर्स है तो बिटकॉइन नेटवर्क अपने आप को ऐसे एडजस्ट करता है कि वो माइनर्स को बोलते हैं ज़्यादा जीरो वाला नंबर हैश ढूंढो, एक ऐसा इनपुट डालो जिससे 30 जीरोज आए। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। अभी माइनर्स ढूंढ रहे हैं बहुत सारे। माइनर्स को क्या करना है कि ऐसा नंबर ढूंढना है, जैसे 107, ये आंसर है, ठीक है? ये नंबर ढूंढना है जो अगर हम जो पूरा खाते का पेज है ना, जो पूरा ब्लॉक है, उसके साथ अगर हम उस नंबर को डालें तो उसका जो आउटपुट है उसमें 30 जीरोज होने चाहिए। चैट में कुछ क्वेश्चंस है? Yes, sir. There's a question. If we transfer Bitcoin equivalent to $1, even that transaction will go into block. Yes, yes. Every transaction will go into block even if you ट्रांसफर बिटकॉइन वर्थ $1। बिटकॉइन को तुम डॉलर से कंपेयर मत करो अभी फॉर दिस वेबिनार। मतलब सोचो एक बिटकॉइन मतलब एक बिटकॉइन, और एक बिटकॉइन को हम 18 डेसिमल प्लेसेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो आप 0.0000017 जीरोज और एक वन, उतना बिटकॉइन भी भेज सकते हो। दैट इज हाउ स्केलेबल बिटकॉइन इज। तो ऐसा सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन है, ठीक है, जो आने हैं। तो लोग कहते हैं 21 मिलियन बिटकॉइन खत्म हो जाए तो फिर हम कैसे भेजेंगे, या हमें बिटकॉइन खरीदना है। तो एक बिटकॉइन तुम खरीद नहीं सकते, तो तुम 1 रुपए का बिटकॉइन भी खरीद सकते हो, बिकॉज 10 to the power 18 डेसिमल प्लेसेस है। सो ये समझ गए कि जो पूरा खाता है, खाते के साथ माइनर को एक ऐसा नंबर ढूंढना है कि मैंने उस खाते के साथ वो नंबर डाला और वो SHA-256 में इनपुट करा, तो मुझे 30 जीरोज वाला एक आउटपुट मिलना चाहिए, ठीक है? और अगर जो माइनर सबसे पहले वो नंबर, अब 1,000 माइनर, सब लोग एक नंबर ढूंढ रहे, पहले 1 के साथ डाल रहे हैं पूरे खाते को, क्या नंबर आया, नहीं आया, फिर 2 के साथ डाल रहे हैं पूरे खाते को, नहीं आया नंबर, 3 के साथ, 4 के साथ, ऐसे करते करते वो एक कोई हजारों में से एक माइनर है जिसे उसने ये नंबर डाला पूरे उस ब्लॉक, ब्लॉक यानी खाता ब्लॉक के साथ, जिसको इनपुट करेगा SHA-256 में, तो 30 जीरोज वाला आउटपुट आ गया जिसकी स्टार्टिंग में 30 जीरो से। तो उस माइनर को आंसर मिल गया। तो माइनर क्या करता है, ये पेज जो है सबको भेज देता है, ब्लॉक पेज खाता यानी ब्लॉक, ठीक है? अब से मैं ब्लॉक बोलूंगा। ब्लॉक को सब नोड्स को, मैंने बोला ना कि जब आप नोड रन करते हो मतलब आप पूरी पासबुक रन कर रहे हो और एक एक ब्लॉक अपडेट होता जा रहा है, हर एक नोड को, हर एक माइनर को भेज देता है दिस इज द ब्लॉक। तो सब कहेंगे कि तुमने ये ट्रांजैक्शन भेजी, हम ट्रस्ट कैसे करें तुम्हें? जैसे मैंने बोला था कि कैसे ट्रस्ट करें कि ये जो कम्युनिकेट कर रहे हैं एक जन दूसरे से वो सही है। उस कम्युनिकेशन को कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क, क्योंकि वो ये आंसर भेजता है साथ में। कहते हैं तुम मुझे ट्रस्ट नहीं करते इसके अंदर सही है, तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है ये आंसर ढूंढने में, प्रूफ ऑफ कंप्यूटेशन, यानी कि ये नंबर ढूंढने में उसने 10 ग्राफिक कार्ड्स लगा रखे हैं माइनर ने। ग्राफिक कार्ड्स क्या कर रहे हैं, कंप्यूटेशनल पावर कर रहे हैं, और
computational power takes electricity. So there's lot of work going on to find this answer. So this answer represents a lot of work that the miner has done. और इस आंसर को हम वैलिडेट कर सकते हैं. हम सबको उसने ये ब्लॉक भेजा, साथ में ये आंसर भेजा, हमने आंसर को ब्लॉक के साथ डाला, हमने देखा माइनर कहे तो सच रहा है कि इसने 30 जीरो है स्टार्टिंग में. इसको कहते हैं कि हमने ट्रस्ट, हम बैंक को क्या करते हैं, ट्रस्ट करते हैं. जो मैंने बोला एक बहुत ही फ्लॉड और वाहियात कॉन्सेप्ट है, ठीक है. तो हम ट्रस्ट को रिप्लेस करते हैं कंप्यूटेशनल वर्क से. ledger plus computational work. This is Bitcoin in its entirety. This is the beautiful protocol that Satoshi Nakamoto gave us. और हर एक, देखो तुम ब्लॉक, ये ब्लॉक है, ये ऐसे ब्लॉक चल रहा है, यही पासबुक है, ये हर एक ब्लॉक को तुम एक खाते का एक पेज समझो. तो if you are running a node, you have access to all of this thing and it keeps getting updated. So every block has this proof of work. This proof of work means this answer. And when you hash this entire block, yani with the proof of work, with this you hash this entire block with some extra data also. और बहुत ज़्यादा complexity में नहीं जाएंगे हम इसके, because I believe there are lot of non-tech people here. Because if we go into the complexity, we'll have to go, we can talk for hours. But इस पूरी चीज़ को hash करके अगले ब्लॉक में डाल देते हैं. यानी कि ये वाला जो ब्लॉक है, दिस इज कनेक्टेड टू दिस ब्लॉक थ्रू द हैश ऑफ दिस ब्लॉक. ये वाला जो ब्लॉक है, दिस इज कनेक्टेड टू दिस फर्स्ट ब्लॉक थ्रू द हैश ऑफ दिस ब्लॉक. तो अगर मैंने ब्लॉक्स की पोजीशन भी इंटरचेंज कर दी ना, तो वो ब्लॉकचेन वैलिड नहीं रहेगी. तो ब्लॉक्स की पोजीशन भी सेम रहनी चाहिए. दिस प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ एडिशनल सिक्योरिटी. तो ये पूरा ब्लॉकचेन देखो ऐसे चल रहा है. हर ब्लॉक एक पिछले ब्लॉक से कनेक्टेड है. हर ब्लॉक में प्रूफ ऑफ वर्क यानी आंसर अटैच्ड है एंड कुछ भी चेंज नहीं हो सकता. दिस इज काइंड ऑफ द एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन एंड आई होप कि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछो तुम लोग. दैट्स हाउ वी मूव फॉरवर्ड. ये कुछ ट्वीट्स है जो मेरे को बहुत पसंद है. If you ever become interested in crypto, know that it's a global open source community that welcomes anyone with good ideas and work ethic. It's perhaps the best industry to be discovered and have meaningful impact. DeFi protocols built by small teams are rivaling big fintechs and banks. तो ये बात है. I work with, there are some decentralized finance protocol जिसमें 17 साल के बच्चे जिन्होंने कोड करा है, they are anonymous, or you will never see this in any industry, that the developers are anonymous. They are anonymous and there's a global team and they have created protocols जिसमें लोगों ने billions of dollars lock करे हैं. This is how the blockchain ecosystem is. You have anonymous developers creating so much of value. Buying Bitcoin is more voting than investing. Naval Ravikant, this is a person I'm really inspired by. He's the founder of Angel Investing venture capitalist firm. Joseph Lubin, co-founder of Ethereum, blockchain is more than a market. The great thing about crypto is that it forced generation of entrepreneurs to learn how banking, money, and financial system work. And this is kind of a tweet I wanted to share, that blockchains will replace networks with markets. अभी इस क्या देखते हैं, अभी सेंट्रलाइज जैसा मैंने बोला, बिकॉज ऑफ अ फ्लॉड फाइनेंशियल सिस्टम, बहुत सारी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि स्टॉक मार्केट, वो भी आई सी सम मैसेजेस आ रहे हैं, बट दिस इज माय लास्ट स्लाइड, तो आई जस्ट कंप्लीट दिस. बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी सेंट्रलाइज्ड हो गए बिकॉज ऑफ अ फ्लॉड फाइनेंशियल सिस्टम जो सेंट्रलाइज्ड हुआ, क्योंकि हमारे पास टेक नहीं था उसे डिसेंट्रलाइज करने का. तो स्टॉक मार्केट को देखिए, एंड इनोवेंचर की मैंने एक पोस्ट भी देखी थी एंड दे शेयर दैट गेम स्टॉक का प्राइस जो है, एंड इफ यू गाइस रीड न्यूज, गेम स्टॉक का प्राइस सर्ज्ड बिकॉज ऑफ अ सब रेडिट वॉल स्ट्रीट बेट्स, जिसमें बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर साथ में आए एंड दे सेड दैट विल बाय गेम स्टॉक का शेयर and it increased in value. This was the first time that retail investors were having more profit than Wall Street investors. This really pissed off the Wall Street, and GameStop I think Nasdaq में listed है, correct me if I'm wrong, but जिस भी स्टॉक एक्सचेंज में था उसकी पेरेंट कंपनी थी, आई बिलीव Nasdaq, उसका पेरेंट कंपनी थी ICE, the exchange in which the
share was listed in United States. उसका parent company ICE is a private company, and the CEO of ICE said that he was looking into removing GameStop from the exchange. पहली बात मतलब कि पूरा जो सिस्टम है ओवरऑल बड़ा फाइनेंशियल सिस्टम, फॉरेक्स एक्सचेंज जो रेट्स है वो मैनिपुलेट होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, एक शेयर का प्राइस क्योंकि कुछ 2-3 रिच लोगों को लॉस हो रहा था, एक पूरा शेयर हट सकता है स्टॉक मार्केट से बिकॉज इट इज प्राइवेट. एंड दिस वी सी दैट द एंटायर गेम, the game of our financial system which our economies book promote, that everybody gets equal opportunities, it is a rigged game. ठीक है, blockchains will replace networks with market. You can have decentralized stock market, as I said, decentralized finance, uh, and that's pretty much it what I wanted to share. um, any questions? Yes, so there's a question in chat box from Vinayak Singla. How can we know that a number is best Shah number? Okay, I think I Like, can see the question. yeah. How can we know that a SHA number is the best SHA number? Like someone created a SHA with 30 zeros. Is this final? Might someone create SHA with 31 zeros and do the ledger gets updated? ठीक है, पहली बात तो जो zeros है, जैसा मैंने बोला कि जितने ज़्यादा zeros उतनी ज़्यादा difficulty blockchain की. So the zeros are decided by the blockchain network. अगर 1000 miners है तो शायद 10 जीरो की डिफिकल्टी से काम चल रहा है. अगर हमें 12 जीरोस वाला SHA नंबर ढूंढना है तो वो और डिफिकल्ट है, और शायद वो ब्लॉकचेन बिटकॉइन नेटवर्क तब बोलेगा माइनर्स को करने के लिए जब 1000 की जगह 10,000 माइनर्स हो जाए, क्योंकि हमें क्या करना है 10 मिनट में चाहिए एक ब्लॉक. उस तो एल्गोरिदम क्या करता है, डिफिकल्टी ऐसे सेट करता है कि ब्लॉक 10 मिनट में ही आए. ये ना हो कि 1 लाख माइनर आ गए तो हर 1 मिनट में एक ब्लॉक बन रहा है. 1 लाख माइनर हो गए तो जल्दी ढूंढेंगे ना वो नंबर. ठीक है, तो पहली बात जो नंबर है 30 जीरो, दैट इज डिसाइडेड बाय द ब्लॉकचेन नेटवर्क. सेकेंड थिंग, नहीं, जो सॉल्यूशन सबसे पहले देता है दैट इज द फाइनल. और आप देखोगे जो अगला ब्लॉक आता है ना, दैट इज लिंक्ड टू द प्रीवियस ब्लॉक बाय द हैश ऑफ इट. तो जब अगला ब्लॉक आ गया तो आप पिछला वाला ब्लॉक चेंज नहीं कर सकते, वरना पूरा ब्लॉकचेन ही चेंज करना पड़ेगा आपको, और आपको अपना खुद का अलग ब्लॉकचेन बनाना पड़ेगा. Can the developer of cryptocurrency manipulate it? This depends on the level of centralization. बिटकॉइन को कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता. कैसे करेगा, मतलब कि कोड है उसका जो बिटकॉइन का वो ओपन है. सो क्रिएटर तो सतोशी नाकामोटो था. अगर वो होता भी इस टाइम तो वो क्या कर लेता, कोड ही तो चेंज करेगा. कोड चेंज करेगा तो एक अलग ब्लॉकचेन बन जाएगी. फिर हम लोग, आप में और मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कौन सी ब्लॉकचेन यूज करनी है. बट कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता इस तरीके से, क्योंकि सारा कोड ओपन सोर्स है, सब चीज़ें कंसेंसस से हो रही है. मतलब नो सिंगल अथॉरिटी कंट्रोल्स इट. Sir, I was having a question कि ये तो सारा टेक का ही पार्ट है, so can it get corrupt at any moment? नो नो नो, जैसा मैंने बोला कि बैंक्स को हम ट्रस्ट करते हैं. ट्रस्ट एक बड़ा एब्स्ट्रैक्ट चीज़, लेकिन क्रिप्टो में हम कोड इज लॉ कहते हैं कि जो कोड लिख दिया वो लॉ बन गया. कोड बोलता है कि हर 10 मिनट में ब्लॉक बनना चाहिए, अनलेस एवरीबडी कम्स टुगेदर चेंजेस द कोड. और कोड चेंज करेंगे तो एक अलग ब्लॉकचेन बनेगी और सब लोग उस ब्लॉकचेन में स्विच होते हैं, तभी वो 10 मिनट की जगह 11 मिनट हो सकता है कि एवरीबडी डिसाइड्स कि नाउ वी यूज दिस ब्लॉकचेन, विच इज जिसे हम कहते हैं हार्ड फोर्क करना. चेंज हो जाती है, और सारे जो माइनर है, माइनर ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं एक तरीके से नेटवर्क को, वो ही माइन करते हैं, माइनर्स भी उसी ब्लॉकचेन में आते हैं. सिर्फ इसी तरीके से हम कोड बदल सकते हैं, वरना ऐसे करप्ट नहीं हो सकता. इट इज बाइनरी 0-1, मतलब 10 मिनट में ब्लॉक बनेगा बनेगा. नो, इट इज फार मोर सिक्योर दैन एनी अदर सिस्टम. इंडिया में बिटकॉइन ट्रेड करने के लिए सबसे अच्छी एप्स कौन सी हैं? I use WazirX. So WazirX is currently the largest cryptocurrency exchange of India, and it is backed by Binance, which is the largest cryptocurrency exchange in the world, private exchange.
तो आई बिलीव वजीर एक्स के थ्रू आप लोग अपना अकाउंट बना के ट्रेड कर सकते हो काफ़ी सिक्योरली। ओके, अपार्ट फ्रॉम इट, एक बार ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन आपने कहा था कि $1 अभी इंडिया में ना 16 रुपीज के इक्वल होना चाहिए इंडिया को स्टेबलाइज करने के लिए। सो ऐसे क्या इंडिया कर सकता है कि जो लाइक थोड़ा सा बिटकॉइन थोड़ा सा आउट ऑफ द कंटेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा क्या इंडिया कर सकता है कि उसका जो डॉलर का प्राइस है वो कम हो जाए, लाइक वो 16 वो कम होना शुरू हो जाए। बेसिकली क्यों है ये डिफरेंस 16 रुपीज़ नहीं है, क्योंकि बिट डॉलर्स हम सब कंट्री को चाहिए ताकि वो ट्रांजैक्शन कर सके। वो ट्रांजैक्शन करने के लिए ही डिमांड बढ़ जाती है डॉलर की। डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ता है, क्योंकि ऑयल हम सिर्फ डॉलर से खरीद सकते हैं। तो कुछ नहीं कर सकता इंडिया, चाहिए तो इम्बैलेंस ऑफ पावर है ग्लोबल लेवल पे कि क्योंकि यूएसए ने अब छोटी कंट्रीज को कहता है कि मैं तुम्हें मिलिट्री दूंगा, आई प्रोवाइड यू प्रोटेक्शन एंड यू हैव टू यूज माई currency. So there's this political diplomacy and military might that cannot be matched of USA. So इसका यही alternative scene है कि India switches to Bitcoin. Okay. Yeah. Sir, even I had a question. Like, sir, right now there's a lot of uncertainty. Like, if अगर हमने आज इन्वेस्ट कर दिया बिटकॉइन में और लॉन्ग टर्म के लिए, और फिर बाद में मतलब पूरे वर्ल्ड में बैन रहता है, यूएस बैन कर देता है, इंडिया भी, तो पैसा डूब जाएगा हमारा। नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। एज फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ पर्सन हु इजंट इनटू क्रिप्टो करेंसीज, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, नाइजीरिया ने कोशिश करी थी बैन करने की अभी 6 महीने पहले। 50% प्रीमियम में वहाँ पे बिटकॉइन ट्रेड हो रहा था। इसकी वजह क्या है कि आप बिटकॉइन तो बैन ही नहीं कर सकते ना। डिसेंट्रलाइज्ड चीज़ को गवर्नमेंट वेबसाइट बैन कर सकती है। अब मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा टेक्निकल स्टफ में इसके रिलेटेड, बट गवर्नमेंट एक वेबसाइट बैन कर सकती है क्योंकि वो सेंट्रलाइज्ड है। उसका जो सर्वर है जहाँ पे वो वेबसाइट होस्ट हो रखी है वो सेंट्रलाइज्ड है। बिटकॉइन एक किसी एक जगह पे होस्ट नहीं हो रखा। आपने नोड रन कर लिया ना, आप होस्ट कर रहे हो बिटकॉइन को, ठीक है। लाखों लोग, करोड़ों लोग होस्ट कर रहे हैं बिटकॉइन को। तो या तो गवर्नमेंट को अगर बिटकॉइन बैन करना है तो उनको पूरे इंडिया में से इंटरनेट निकालना पड़ेगा। उसके बाद भी एक कंपनी है जिसने बिटकॉइन का नोड सैटेलाइट में भेज रखा है स्पेस में। अगर इंटरनेट ही पूरी इंडिया का निकाल लिया तो इंडिया के लोग सैटेलाइट से सिंक कर लेंगे अपना बिटकॉइन नोड, ठीक है। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल तो है नहीं बिटकॉइन बैन करना। गवर्नमेंट कर क्या सकती है, जो करा था आरबीआई ने 2017 में, बोला कि बैंक्स को बोला कि तुम एक्सचेंजेस के साथ डील नहीं कर सकते। मतलब एक्सचेंज का बैंक अकाउंट और मेरा बैंक अकाउंट इंटरैक्ट नहीं कर सकता। तो पीयर टू पीयर ट्रेडिंग हो गई। मतलब कि मैंने आपके बैंक में 10 लाख रुपए डाल दिया, आपने मेरे वॉलेट में 10 लाख रुपए का बिटकॉइन डाल दिया। पीयर टू पीयर ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई। सो देयर इज नो प्रैक्टिकल वे दैट गवर्नमेंट विल बी एबल टू बैन बिटकॉइन, इवन इफ इट देयर आर सम मेजर्स एज सच। तो बिटकॉइन तो आपका ही है, आपके वॉलेट में पड़ा है, जो क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर है, जिसके आपके अलावा कोई एक्सेस ही नहीं कर सकता उसे। हाउ डज इट टेक इट फ्रॉम यू? इट कैन नॉट। एंड अभी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन यूनाइटेड स्टेट्स में जो है, उसके हेड ने बोला दैट वी आर फार ऑफ फ्रॉम दैट स्टेज ऑफ बैनिंग बिटकॉइन बिकॉज वी हैव अंडरस्टूड इट कैन नॉट बी बैंड। वी हैव टू रिमूव द इंटरनेट टू बैन इट। सर, लाइक आई वाज सेइंग दैट कि सर हमने आज बिटकॉइन खरीद लिया, तो उसका यूज क्या है? या तो फ्यूचर में वी कैन यूज बिटकॉइन टू बाय प्रॉपर्टी, और वी कैन यूज बिटकॉइन टू बाय कार्स। पर अगर कंट्री बैन कर देते फिर तो उसका कुछ यूज रहेगा नहीं, आई गेस। नहीं, अब ये तो रेगुलेशन से ही आएगा। अभी मैं यहाँ डॉलर एक्सेप्ट नहीं कर सकता एज अ लीगल टेंडर, है ना। लीगल टेंडर में मैं अपनी दुकान में डॉलर एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि नहीं, गवर्नमेंट ने बोला है नहीं कर सकते। वो उसका हमें, मेरे ख्याल से जो चेंजेस है वो स्लो आएंगे। इंटरनेट जब बना है 1970s में, तो कोई रेगुलेशन नहीं थी उसको लेके। और रेगुलेशन तो छोड़ो, मतलब तुम तब सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे इंटरैक्ट करोगे, ठीक है। तो 30 साल लगे, 40 साल लगे उसे डेवलप होने में। तो सेम इज विद बिटकॉइन, इट इज इन एन वेरी इन्फैंसी स्टेज। कैलिफोर्निया में आप अपने टैक्सेस दे सकते हो बिटकॉइन से, सॉरी कनाडा में।
आई डोंट रिमेम्बर, आइदर इट वाज देयर इज वन कंट्री, आइदर कनाडा और कैलिफोर्निया स्टेट जो है, वहां पे आप टैक्सेस दे सकते हो बिटकॉइन से। टेस्ला ने बोला है अपनी 8% बैलेंस शीट, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी टेस्ला ने 8% बैलेंस शीट जो है अपनी बिटकॉइन में डाल रखी है, और वो बोल रही है कि एक्सेप्ट करेगी बिटकॉइन टू एक्सेप्ट पेमेंट्स फॉर देयर कार्स। सो अडॉप्शन विल स्लोली स्लोली कम। जापान में बहुत ज़्यादा अडॉप्शन है, साउथ कोरिया में बहुत ज़्यादा अडॉप्शन है, जहाँ पे आप खरीद सकते हो चीज़ें विद बिटकॉइन। सो अभी सरकार मतलब धीरे धीरे ही समझेगी। अभी हिंदुस्तान में आई गेस 10,000 करोड़ का बिटकॉइन ट्रेड हुआ लास्ट ईयर। जब ये 1 लाख करोड़ में पहुंच जाएगा, देन गवर्नमेंट वुड बी लाइक अब तो सब कुछ करना ही पड़ेगा ना, फिर स्लोली कम। So there are questions in chat box. First of all is what if government or bank release their own crypto? By Omkar, what if government or banks release their own crypto? Okay, yeah, they can. इसे CDBC कहते हैं, CBDC, सेंट्रल बैंक करेंसीज। सो मतलब आई थिंक ब्लॉकचेन से सिक्योर्ड होगी वो, मेन एडवांटेज यही है। अब ये तो जो मैंने पूरा लेक्चर दिया कि डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, हमारे पास हक होना चाहिए, ठीक है, वो तो नहीं रहेगा अगर बैंक इशू करती है या हिंदुस्तान इशू करता है अपनी करेंसी। कंट्रोल फिर भी इंडिया के पास रहे, RBI के पास, फिर भी वो मैनिपुलेट हो सकेगी। बट ब्लॉकचेन जो है एडिशनल ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करती है। आज आज PM केयर फंड्स कहाँ गए, जैसे मतलब नहीं पता, मैं कह रहा हूँ इट कुड बी अ बेटर वे थ्रू ब्लॉकचेन टू ट्रांसपेरेंटली ट्रैक दैट, टेक्नोलॉजिकली बेटर वे। अभी कल की बात है, इंडिया का एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप है पॉलीगॉन नेटवर्क, विच हैज डन अ लॉट ऑफ इनोवेशन इन ब्लॉकचेन। उन्होंने, उसके फाउंडर ने, संदीप ने एक एड्रेस भेजा कि आई वांट टू डू समथिंग फॉर द ऑक्सीजन क्राइसिस इन इंडिया, एंड एवरीबडी, द ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी कम्युनिटी हैज सेंट ओवर $1 million। अभी मैं ट्रैक कर सकता हूँ उस एड्रेस में कि वो एड्रेस कहाँ कहाँ पेमेंट कर रहा है। इट इज पब्लिकली ओपन, so it provides additional transparency। तो ये सीन है, बट फिर भी वो डिसेंट्रलाइज एस्पेक्ट जो है, जो बिटकॉइन जिस वजह से आया था, वो नहीं रहेगा। हैव यू पर्सनली इन्वेस्टेड इन बिटकॉइन? इफ यस, व्हाट वाज योर एंट्री पॉइंट? आई बॉट अ लिटिल इथेरियम इन 2016, बहुत कम, मतलब 20,000 रुपये का, and I sold it very often after it. So that my first entry point wasn't Bitcoin, it was Ethereum. बहुत सस्ते में बेच दिया था। I bought it for 20,000, I sold it for 60,000 in 2016. How much Bitcoin miner will get for committing one block? They get 6.25 Bitcoin currently, लेकिन हर 4 साल में जो रिवॉर्ड है ये आधा होता रहता है। अभी कुछ टाइम पहले ही बिटकॉइन हार्वनिंग हुई है, तो उससे पहले उन्हें 6.25 की जगह 12.5 बिटकॉइंस मिलते थे पर ब्लॉक। 4 साल बाद अब उन्हें 6.25 मिलते हैं, 4 साल बाद इसका भी आधा मिलेगा। हाउ इज द प्राइस ऑफ बिटकॉइन डिसाइडेड? इट इज डिसाइडेड बाय ओपन एक्सचेंज। अगर ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं दैन द पीपल हु आर सेलिंग, तो प्राइस ऊपर जाएगा। मतलब जिस प्राइस में लोग खरीद रहे हैं बस लोग ही प्राइस डिसाइड करते हैं अल्टीमेटली। How can a non-technical person verify block or blockchain? Is it even required or we even can? You can, आप नोड, आप अपना खुद का नोड रन कर सकते हो। आप गूगल में लिखना रन बिटकॉइन नोड, एक सॉफ्टवेयर आ जाएगा, छोटा सा सॉफ्टवेयर होगा जो बिटकॉइन नोड आपके कंप्यूटर में डाउनलोड कर देगा, एंड आप पूरा लेजर जो है, हर एक ब्लॉक आपके कंप्यूटर में अपडेट होता रहेगा। So that's how you can do it. It is required. Is it even? It is not. अगर आपके पास बिटकॉइन है, जरूरी नहीं कि आप नोट रन करो। आपके पास बिटकॉइन है, there are thousands of people who are verifying the transaction. So it is not required by you, but you can if you want to participate in the network. अगर हमें बिटकॉइन का एक छोटा सा पार्ट लेना है, वो पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल, नो डाउट बहुत सारे बिटकॉइंस अवेलेबल हैं और मैं $1 का बिटकॉइन भी परचेज कर सकती हूँ, $10 वाला भी कर सकती हूँ। बट फॉर एग्जांपल जो बिटकॉइन सबसे अच्छा चल रहा है, जिसकी 40 lakhs वैल्यू है, मुझे उस बिटकॉइन का कुछ पार्ट परचेज करना है, तो इज इट पॉसिबल कि हम उसका कुछ पार्ट परचेज कर सकें? मैं समझा नहीं क्वेश्चन। मतलब बिटकॉइन तो एक ही है,
या मतलब एक ही मतलब जैसे बहुत सारी अलग अलग कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं क्रिप्टो करेंसीज है या अलग अलग, क्रिप्टो या करेंसी फिर अलग आप, अलग है अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। या तो तो लाइक आप अगर मुझे हम्म, या मुझे बिटकॉइन का एक पर्टिकुलर छोटा सा पार्ट करना है क्योंकि मैं 40 lakhs नहीं पे कर सकती सो क्या लाइक आई कैन परचेज दैट छोटा सा पार्ट ऑफ दैट या एक लेना कंपल्सरी नहीं नहीं, आप छोटा सा पार्ट भी ले सकते हैं, उसका 10⁻18 प्लेसेस तक वो डिवाइड हो सकता है, तो 0.0001 बिटकॉइन भी आप ले सकते हो, यानी 10 रुपए का बिटकॉइन भी आप ले सकते हो। ओके I have one question. Are we comparing currency and Bitcoin, or are we comparing investment and Bitcoin? दैट इज अप टू यू, एंड दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। पता है ये एक पूरा ये क्वेश्चन एक मैटर ऑफ डिबेट है पूरे ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी इकोसिस्टम में कि इज इट Exactly. बिटकॉइन स्टिल अ करेंसी और इज इट एन एसेट। सो इट इज हाउ यू ट्रीट इट, इट इज हाउ यू ट्रीट इट। अगर आपको करेंसी की तरह यूज करना है तो if you send $1 million from you here to your friend through Bitcoin, you can. And the larger aim, या सतोशी नाकामोटो जिन्होंने लिखा था वाइट पेपर, उनका एम यही था कि एक ग्लोबल करेंसी बने जो सेंसरशिप रेजिस्टेंट हो, कोई सरकार का कंट्रोल ना हो, सिर्फ लोगों का कंट्रोल हो एज अ करेंसी। बट if you are investing there and considering the current regulations and the scenario जहाँ पे हमें पता चल रहा है कि अभी रोजमर्रा की जिंदगी में मैं यूज नहीं कर सकता बिटकॉइन एज अ करेंसी, तो हम उसे एसेट की तरह ट्रीट करते हैं क्योंकि इट इज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब कि रुपीज का तो इनफाइनाइट सप्लाई है, बिटकॉइन सिर्फ 21 मिलियन बनेंगे। टू पुट इन पर्सपेक्टिव, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन 40 मिलियन है, बिटकॉइन सिर्फ 21 मिलियन बनेंगे। जब इतने से बिटकॉइन होंगे और सबको चाहिए होंगे तो प्राइस उसका बढ़ेगा। No, but considering that Bitcoin is something whose value changes due to demand and supply, and it is very, very currency. सो इट इज़ वॉलेटाइल बिकॉज अभी अर्ली स्टेज में है, कोई डेवलपर नहीं है, कोई कंपनी तो है नहीं जो हायर कर रही है डेवलपर्स। द प्रोटोकॉल चेंजेस टेक इट लॉट ऑफ टाइम, वो प्रपोजल बेस्ड है डेवलपर्स। एवरी यू कैन चेंज बिटकॉइन प्रोटोकॉल, यू कैन एज अ फाइनेंस स्टूडेंट यू कैन से कि नहीं ये टोकोनॉमिक्स जो है कि हर 4 साल में आधा हो रहा है, ये दे आई प्रोवाइड अ बेटर थ्योरी, सो यू कैन गो फॉरवर्ड एंड चेंज, पुट ऑन अ प्रपोजल एंड change the bitcoin protocol, and people have done that. This is common people who change bitcoin protocol. So development थोड़ी स्लो है, अडॉप्शन थोड़ी स्लो है, फिर भी स्लो तो नहीं बोलूंगा बिना रेगुलेटरी क्लैरिटी के। अगर $90 बिलियन के बिटकॉइन रोज ट्रेड होते हैं एट $1 ट्रिलियन मार्केट कैप, इट इज नॉट अ स्लो अडॉप्शन, बट स्टिल अभी जैसे इंटरनेट इन्फेंसी स्टेज में बहुत छोटा था कि देयर इज अ नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट जिसने कहा था कि इंटरनेट का जो इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी में, इट विल नॉट बी बिगर दैन अ टेलीग्राफ मशीन। तो वो ही स्टेज में हम जहाँ पे अभी सब लोग डाउट कर रहे हैं। सो यू हैव टू रियली रीड योरसेल्फ, क्या मैं इस नई दुनिया नई फाइनेंशियल सिस्टम को डू आई एक्सेप्ट दिस, does it make sense? If it does, that's where you buy a bitcoin key, it makes sense and people will buy it because uh, Venezuela and abhi Argentina and 2 3 more countries have gone through hyperinflation. Turkey is going through a lot of inflation, Lebanon has gone through a lot of inflation. तो इन सब कंट्रीज में जहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशन हुई है ना रिसेंटली, वहाँ पे लोग बिटकॉइन में स्विच कर गए हैं। Venezuela में you can buy a bread with Bitcoin because they have switched to Bitcoin as a currency. So that's how the changes will take place. So there are questions in chat box from Akshay Ghatgi that Bitcoin a miner gets is from 21 million or which is existing or other than that. It's 21 million, not trillion. Yeah, And yes. हाँ, तो अभी 18 मिलियन, अभी अराउंड $19 million बिटकॉइन हैव बीन माइंड। 19 मिलियन माइन हो चुके हैं, वो 21 मिलियन बचे हैं। तो जब तक 21 मिलियन माइन, तो वो नए बिटकॉइन क्रिएट होते हैं। 21 मिलियन मैक्सिमम रहेगा, 19 मिलियन क्रिएट हो चुके हैं। तो माइनर जब एक ब्लॉक माइन करता है तो उसे 6.25 बिटकॉइन मिलते हैं जो क्रिएट होते हैं, और जब तक 21 मिलियन नहीं होगा वो क्रिएट होते रहेंगे, और 21 मिलियन हो जाएगा तो उसके बाद यू विल पे माइनर्स some incentive to mine the block for the security as fees, but it will Yes. take more than 100 years to
get 21 million bitcoins. In our lifetime, 21 million bitcoins will not be mined. Okay. So there's another question from Rajat that can you please show us a real-time transaction of any crypto right now, if possible? Yes, I can of Ethereum. मैं बोलता हूँ एक मिनट. स्क्रीन विजिबल है मेरी? Yes, sir. Yes, sir, it is. यहाँ पे देख रहे हैं हम, ये इथेरियम इज द सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एज वी नो इट, एंड दैट इज ऑन विच आई डेवलप. आप डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो इथेरियम में, यानी कि उबर विदाउट द उबर कंपनी, एक डिसेंट्रलाइज्ड उबर है जहाँ पे ड्राइवर है सिर्फ, उन्हीं को जा रहे हैं पैसे, डिसेंट्रलाइज तरीके से होस्ट हो रहे हैं. कि आपने सुना होगा डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, बार बार जब ब्लॉकचेन की बात करते हैं तो वो इथेरियम के ऊपर बनी है. एनएफटी और ये सब चीज़ें इथेरियम के ऊपर बनी है. सो ये लेटेस्ट ब्लॉक है और यहाँ पे ट्रांजैक्शन आती जा रही है. हम एक ट्रांजैक्शन में क्लिक करते हैं, ये अभी अभी ब्लॉक आया है. ये ब्लॉक में देखो 275 ट्रांजैक्शन है. अभी 25 सेकंड पहले ये ब्लॉक माइन हुआ है. ये माइन हुआ है जिस एड्रेस से, जिस माइनर से, उसका भी एड्रेस है हमारे पास. हम उस एड्रेस में क्लिक करेंगे तो उस माइनर की सारी ट्रांजैक्शन दिख जाएगी. ट्रांसपेरेंसी, 275 ट्रांजैक्शन माइन हुई है. ये हमने इसको क्लिक करा एंड वी कैन सी ऑल द 275 transactions that happened. We can see the value is 0.54 ether somebody sent from this address to this address. That it is all transparent, and you can go to etherscan.io and see all the transactions that are being mined. Okay. So there's another question that what is crypto burning and what are the impact of that on crypto price? क्रिप्टो बर्निंग मेरे ख्याल से कभी वजीर एक्स टोकन बर्न हुआ था, WRX, आई बिलीव उसी से इंस्पायर होकर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो. तो इट इज़ व्हेन द पीपल इन द प्रोटोकॉल फील दैट अभी लाइक बिटकॉइन 18 मिलियन सप्लाई का है तो 21 मिलियन है, तो वो कहते हैं 21 मिलियन नहीं 20 ही मिलियन बनेंगे, तो 1 मिलियन जो है बर्न करती है, उसी को क्रिप्टो बर्निंग कहते हैं. ऑब्वियसली व्हेन इन्फ्लेशन डिक्रीजेस, अभी बिटकॉइन हैज़ अ सर्टेन इन्फ्लेशन बिकॉज इट इज़ बीइंग माइंड. ऑब्वियसली वो हमेशा नहीं रहेगी, बट फॉर नाउ इट इज़ वेरी स्लाइट इन्फ्लेशन. सो inflation decreases when the maximum circulating supply possible decreases. When the maximum circulating supply decreases, obviously the price increases. Demand supply, there is less supply, more demand. Okay, so there's another question from Vinayak Singla that as we are thinking of decentralized currency, can we also create decentralized internet? Yes, Vinayak, और हो गया क्रिएट. दैट इज हाउ वेयर आई एम वर्किंग. इथेरियम प्रोटोकॉल जो है दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट. इसे हम वेब 3.0 कहते हैं. वेब 1.0 था जब इंटरनेट आया था. 2.0 था जब इंक्रिप्शन आई थी और वो हमें AR जैसे, यहाँ पे मतलब हम भी इंटरनेट से इंटरेक्ट कर रहे थे. द AR गॉगल्स दैट वी वेयर, वी इंटरेक्ट विद इंटरनेट इन अ वेरी अदर वे. सो वेब 2.0 बोला था उस रेवोल्यूशन को. अभी वेब 3.0 कहते हैं हम इथेरियम को. जो वेबसाइट होस्ट होती है उसको आप डिसेंट्रलाइज तरीके से होस्ट कर सकते हो कि कोई सरकार उसे रोक ना सके होस्ट होने से. All the decentralized financial instruments, they are replicated over the internet. All the dApps, decentralized application is dApp. They are decentralized. They are another layer over the internet that is completely decentralized. Another internet that is completely decentralized. So it is created and it is being created as we say this. Bitcoin and Ethereum are two major currencies as. Yeah. तो इथेरियम एक पूरा प्रोटोकॉल, एक लेयर प्रोवाइड करता है एक नए इंटरनेट के लिए. So crypto exchange platform can't show more circulating supply like banks. 1 minute. So they won't show. Why will they show more circulating supply than, and you can always use decentralized exchanges. अगर आपको सेंट्रलाइज एक्सचेंज में ट्रस्ट नहीं है, ये तो
मैं समझा नहीं इस क्वेश्चन को. So crypto exchanges platforms can't show more circulating supply like banks. No. They cannot show more circulating supply like banks because वो they are only provide you access to cryptocurrency. वो बिटकॉइन का एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं. वो बिटकॉइन नया क्रिएट नहीं कर सकते. बिटकॉइन क्रिएट करने की पावर सिर्फ और सिर्फ माइनर में है. और जब वो माइनर माइन करता है ट्रांजैक्शन, वो प्रोटोकॉल, बिटकॉइन को एक प्रोटोकॉल की तरह समझो इंटरनेट में. वो सिर्फ एक सेट ऑफ रूल्स, एक सॉफ्टवेयर की तरह चलेगा. बैंक उसमें नया बिटकॉइन नहीं बना सकता. एक बिटकॉइन ही रहेगा. एक बिटकॉइन जैसे इथीरियम है, अभी इथीरियम ही रहेगा. इसको कोई और ऐसे चेंज नहीं कर सकता अनलेस दे माइन इट. कोड इज लॉ, जैसा मैंने बोला था. कोड इज लॉ. I think that it's such an interesting topic that we can go on with the questions for, we'll be needing another session to answer all these questions and queries that the people are raising. But looking at the time, your demand, we can obviously organize another session with Sachin sir to answer all your queries and doubts. Kushal? Yeah, thank you, sir. It was definitely an amazing session. We are very grateful to you for taking out your time and sharing your knowledge. And to everyone who joined in today, we really thank you for being a part of this. Yeah, so until next time, everybody please stay safe and Khushali. Yeah. Yeah. Thank So you we so are much, everyone. Yeah. So we had circulated a feedback form in the group as well as in the chat box. You guys can fill the form and let us know your reviews on today's session. Thanks for joining in. Thank you, Vinayak. We are glad you liked it. Thank you so much, Omkar. I would like everyone to turn on their cameras for a group picture. We may start the group picture now. Right. We got late, I guess. No worries. जितने हैं उनसे कर लेते हैं एक बार. Shreya, are you taking the pic or should I? I am taking pictures. Ooh. No, after it's done. Shreya, is it done? Done, guys, done. Okay, cool. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, everyone.